Hello students, welcome to Academic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the revision through MCQ discussion series. Alright. Now we'll be discussing the MCQs and through that we'll revise the complete chapter. The name of the chapter that we are going to today is Relations and Functions. Now specifically we'll be dealing with questions on functions which involve finding the domain of a function. All right. अब domain निकालने के लिए you need to have the knowledge of various standard functions like exponential function, logarithmic function, square root function. All right. All the algebraic functions like modulus, greatest integer function, fractional part, and then trigonometric functions and also inverse trigonometric functions. All right. So involving all these functions, we'll see how do we find the domain. All right. So let's begin. But before we do that, beta, don't forget to subscribe to our channel. All right. So make sure that you subscribe so that you keep on getting intimation on the new upcoming videos so that you are able to see all the MCQs which we are discussing. All right. So let's begin. Look at the first question on your screen now. अब देखो, first question that we are given is, as you can see, we have to find the domain of this function. आप देख सकते हो ये domain जो function है बेटा, it involves a square root function. अब क्योंकि हम real numbers में deal कर रहे हैं तो that means जो domain है बेटा उसके लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड नॉट बी नेगेटिव. और नोटिस करो जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर में है. द स्क्वायर रूट इज इन द न्यूमरेटर, सो दैट मीन्स quantity inside the square root can be 0, can be positive, but it cannot be negative. तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो लेट मी राइट द फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमें ये दिया है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? ये हमें दिया है. अब देखो जैसे हमने कहा डोमेन के लिए बेटा रिक्वायरमेंट ये है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गई तो नॉन रियल नंबर आ जाएगा. तो कंडीशन हम ये लेंगे 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इस इनइक्वालिटी को वी आर गोइंग टू सॉल्व और जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन. इज इट ओके? अब देखो इसको सबसे पहले आप नोटिस करो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव है. तो जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं, आई होप यू रिमेंबर दैट वी मेक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू बी पॉजिटिव and then we factorize by splitting the middle term. So to make coefficient of x square negative, what we are going to do is we will multiply by minus 1. So let us multiply by minus 1. So if we multiply by negative quantity, sign of inequality will reverse. So that means we have x square plus 2x minus 2 will be less than or equal to 0. Now let us solve it. अब आप नोटिस करो इसमें आप फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते. ऑलराइट, वी वोंट बी एबल टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो ऐसे में हमने रूट्स कैसे निकालने हैं? वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ऑलराइट, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके बेटा इस कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक का रूट हम निकालते हैं. तो यू नो दैट एक्स इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, लुक हियर, माइनस बी plus minus under root of b square minus 4ac and divided by 2a. Alright, so let's apply this quadratic formula to obtain the roots. So we have x is equal to minus 2 plus minus under root of 2 2s are 4 and then we have minus minus plus 4 2s are 8 divided by 2. Is it okay? So what are we getting? We are getting x to be equal to minus 2 plus minus under root of 12, which is 4 into 3. So this can be written as 2 root 3 and divided by 2. Now let us take 2 common. 2 common लेके ऊपर नीचे बेटा कैंसिल करो. So we get x as minus 1 plus minus under root of root 3. तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए. अब देखो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ये है. This is the inequality which we have to solve. अब इसको सॉल्व कैसे करना है ऑब्जर्व करो. जैसे नंबर लाइन के ऊपर we will take the two roots. Now the smaller root will be, there are two roots, one is minus 1 minus root 3, the other root is minus 1 plus root 3. So you know that smaller root is minus 1 minus root 3, so it will come first and then we will have minus 1 plus root 3.
अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये इनइक्वलिटी में ऑब्जर्व करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो यहाँ पे वी विल टेक प्लस माइनस प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. अब इनइक्वलिटी में इक्वल टू 0 अलाउड है, दैट मीन्स रूट्स कैन बी टेकन, सो वी पुट डार्क सर्कल्स. एंड देन वी हैव लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब ये हमारे पास ये माइनस वाला रीजन आपने लेना है. वेवी कर्व मेथड में दैट इज द वे वी सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, right? So because we have equal to 0, so we have taken dark circles, that means roots are included, and then we have less than 0, so this region is to be taken. So that means we are getting minus 1 minus root 3 से लेकर x is lying till minus 1 plus root 3. तो ये इंटरवल हो जाएगा जिसमें हमारा x लाई कर रहा है. इस बात को देखो आप ऐसे भी कह सकते हो कि x belongs to closed interval -1 minus root 3 to -1 plus root 3, right? So this will be the domain. तो ये हमारे पास आ जाएगी domain of the given function. तो let us check the options, all right? So -1 minus root 3 से लेकर -1 plus root 3. तो now look at the question on your screen बेटा. तो आप देखो ये B ऑप्शन में है, -1 minus root 3 x है ना, यहां से लेकर है -1 plus root 3. तो that means in this question correct option is B. तो B option is correct. Okay, let's move on to the next question now. अब देखो question number 2 अपनी screen पे. Let's read the question. We have to find again the domain of definition of real function, and function is fx equal to under root of log x square to the base 16. All right, so let us find the domain of this function. तो we are going to write the function initially. तो सबसे पहले फंक्शन हम लेते हैं, ये है अंडर रूट ऑफ log to the base 16 x square. अब आप नोटिस करो इस पर्टिकुलर फंक्शन में ना दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं. इट इज कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शंस. पहला आपका देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ पे जो बाहर फंक्शन है बेटा इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन. ऑलराइट, तो आपको पता है कि जैसे अगर आपके पास अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फिर उसके बाद अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है. अब देखो जब हम ये लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, ठीक है, सपोज आप ये कोई भी फंक्शन लेते हो तो उसमें डोमेन क्या होती है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0. लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफाइंड होता है, दैट मीन्स x शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, और पहले हमने ये बोला कि अगर हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है और x न्यूमरेटर में है तो कंडीशन होती है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो दीज आर द टू फंक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड. तो अकॉर्डिंगली हम लेंगे इसमें कंडीशंस. तो पहले स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव पहली कंडीशन ये आ गई log x स्क्वायर टू द बेस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सेकेंड कंडीशन बेटा log की डोमेन पे आएगी. हमारे पास कंडीशन ये होती है कि log x डिफाइंड है इफ x इज ग्रेटर देन 0. तो log x स्क्वायर है बेटा, तो x स्क्वायर विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब देखो वैसे तो log में बेस के ऊपर भी कंडीशन होती है. जैसे आपके पास बेस a है तो बेस के बारे में हम क्या बोलते हैं बेटा, either base lies from 0 to 1 और base is greater than 1. तो अगर आपके पास बेस में वेरिएबल होता है, is it okay? Then we have to take that condition also. यहाँ पे बेस आपका कांस्टेंट है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन आपका क्या है 1 है बेटा. तो हमें वो कंडीशन बेस वाली लेने की जरूरत नहीं है. वी ओनली हैव टू टेक द कंडीशन ऑन x. अब ये दो कंडीशंस आई हैं, इनको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन. ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले ये लॉग वाली इनइक्वालिटी, क्योंकि बेस 1 से बड़ी है तो इसमें आप रिकॉल करो हमारे पास इनइक्वालिटी में ये रिजल्ट होता है इफ यू हैव log x टू द बेस a ग्रेटर देन और इक्वल टू m. तो यहाँ पे देखो दो कंडीशंस होती हैं. जैसे मैंने कहा या तो बेस होती है बेटा 0 से 1 या 1 से बड़ी. तो अगर आपकी बेस 0 से 1 के बीच में है तो अगर आपने x निकालना है तो वी विल हैव x विल बी लेस देन और इक्वल टू a रेस पर m, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता है. और अगर बेस इज ग्रेटर देन 1
तब हम ये कहते हैं कि अगर ये इनइक्वालिटी है तो अगर आप x लेते हो डेफिनेशन से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नोटिस करो हमारी बेस 16 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो दैट मीन्स ये वाला केस अप्लाई होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। दैट मीन्स व्हाट डू वी गेट? वी गेट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 रेज पावर 0। दैट मीन्स वी आर गेटिंग x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? वी हैव x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेट अस फैक्टराइज नाउ। ऑलराइट, तो फैक्टराइज करते हैं। ये देखो, वी हैव x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें डायरेक्टली फैक्टराइज हो गया। व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर माइनस 1 एंड 1। ठीक है ना, यही रूट्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम नंबर लाइन पे रूट्स ले लेते हैं। पहला रूट है माइनस 1 और फिर 1। इक्वल टू 0 अलाउड है तो रूट्स कैन बी टेकन, सो वी पुट डार्क सर्कल्स। फिर प्लस माइनस प्लस लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और देखो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन 0 है, तो इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ पे आप प्लस वाला रीजन अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब ये हो गया आइदर एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी तब सेटिस्फाइड है। ऑलराइट, कौन सी कंडीशन? ये वाली कि log x स्क्वायर टू द बेस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप सेकेंड कंडीशन पे आओ, x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब आप नोटिस करो, इसको सॉल्व करके हम इस स्टेप पे आए थे कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप नोटिस करो, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इट इंप्लाइज दिस, ऑटोमेटिकली अगर x स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा हो ही गया। तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई बेटा, अगर आपने इस कंडीशन को ले लिया। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया कि आइदर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं। लुक एट द ऑप्शंस नाउ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। अब आप नोटिस करो, आपको ऑप्शन दी है x ग्रेटर देन 0। ये तो नहीं आ रहा हमारा आइदर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 या हमने निकाला है x 1 या 1 से बड़ा होगा। अब देखो आपको मॉड की टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी यूज करते हैं। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे ये हमारा सोल्यूशन आया था बेटा। मॉड में क्या होता है, जैसे इफ यू हैव इनइक्वालिटी मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो क्या रिजल्ट होता है? और अगर a पॉजिटिव हो बेटा तो इसका सोल्यूशन ये होता है, नंबर लाइन पे आप लोगे माइनस a और a। इज इट ओके? और ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो डार्क सर्कल्स लेते हैं और बाहर वाला रीजन लेते हैं या तो x माइनस a से छोटा या a से बड़ा। तो यहाँ पे देखो a की जगह माइनस 1 है, तो ये वाली इनइक्वालिटी हमारी क्या इंप्लाई करती है कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Is it all right? Because x is either less than equal to minus 1 और greater than or equal to 1। तो ये तब होता है अगर हमारे पास ये inequality हो, तो a के बदले में 1 है, तो this implies mod x is greater than or equal to 1। So now let us again see the options, because some of the options were given in terms of modulus। All right? तो अब आप देखो, नोटिस करो कि ये वाली B ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। तो let us write the correct option। So the correct option is B। ओके तो दो फंक्शंस इन्वॉल्व थे, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन। और लॉग में इनइक्वालिटी है तो वो इस हिसाब से सॉल्व होती है कि बेस इज 0 से 1 के बीच में और बेस इज ग्रेटर देन 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट पार्ट ऑफ द डोमेन of this function lying in the interval -1 to 6। अब देखो पूरी डोमेन नहीं बतानी क्योंकि आपको पता है cos x की वैसे डोमेन -∞ to +∞ होती है। तो आपको एक इंटरवल दिया है, इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड हो, वो आप बताओ कि क्या है। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फंक्शन। वी आर गिवन द फंक्शन fx इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, न्यूमिरेटर है cos x minus half divided by, now look at the denominator। डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 6 plus 35x minus 6x square।
और इंटरवल हमें दिया है क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर 6। तो इस इंटरवल में देखना है कि हमारे पास डोमेन क्या होगी। अब जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपके पास ये फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो आपको पता है रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है cos x माइनस हाफ, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो न्यूमरेटर में रूट है तो रूट के अंदर 0 आ सकता है, बिकॉज यू कैन हैव 0 इन द न्यूमरेटर बट नॉट इन द डिनोमिनेटर। तो पहले इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो वी आर गेटिंग cos x इज, जस्ट अ मोमेंट, तो वी आर गेटिंग cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। अब देखो हमें इंटरवल दिया है -1 to 6। इस इंटरवल में वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ और फिर हम देखेंगे कब cos x हाफ या हाफ से बड़ा है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ नाउ। अब यहां पे देखो ध्यान से, वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ ऑफ cos x इन -1 to 6। तो यहां पे देखो x एक्सिस ले लो एंड देन वी कैन टेक हियर y एक्सिस। ऑलराइट, ये हो गई। दिस इज ओरिजिन। Suppose we have somewhere here -1, then we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Is it okay? हमारे पास ये आ गया। अब cos के लिए हमें पाई के π/2, पाई 3π/2 वगैरह चाहिए, तो हम उनको इंट्रोड्यूस इसी के बीच में करते हैं। देखो जैसे π/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57, तो समवेयर हेयर यू विल हैव π/2। फिर पाई 3.14 होता है, तो समवेयर आफ्टर 3 यू विल हैव पाई। फिर π/3 π/2 करीब यहां पे आएगा बेटा 4 और 5 के बीच में, एंड लिटिल आफ्टर 6 यू विल हैव हाउ मच, 2 पाई। इज इट ऑल राइट? ये 2 पाई हो जाएगा। और देखो पीछे -π/2, -π/2 इज -1.7, -1.57 कह लो, तो इससे पीछे आएगा बेटा। तो ये थोड़ा सा हम इसको ठीक कर लेते हैं। लेट अस extend this. So we have this as -1. So we will have somewhere here -π/2. Is it all right? यहाँ पे मान लो हमारे पास 1 है and this is -1. Now look at the graph of y is equal to cos x in this. So look carefully. Cos 0 is 1. Cos of -π/2 is 0. Cos π/2 0 है, cos pi पे वैल्यू -1, cos 3π/2 is 0 and cos 2π is 1. तो देखो cos का ग्राफ हमारा ऐसे आ गया। Can you see? This will be the graph of y is equal to cos x. All right? अब हमें कहा है इनइक्वालिटी ये दी है cos x is greater than or equal to -half. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, तो हाफ हमारा यहां पे आएगा। तो यहां पे हम ये लाइन लेते हैं, दिस इज y इक्वल टू हाफ, तो cos x इससे बड़ा होना चाहिए। अब आप नोटिस करो, अगर cos x इससे बड़ा होना चाहिए तो हमें कौन से वाला पार्ट लेना है, जिसको मैं रेड से कर रही हूं बेटा हाईलाइट, ये वाला पार्ट ले सकते हैं और ये पार्ट ले सकते हो। इज इट ऑल राइट? यू कैन टेक दिस पार्ट। Now look here, we are given that cos x is greater than or equal to half and we are also given x is belonging to -1 से लेकर 6 तक। अब देखो cos x is greater than or equal to half, हाफ कब बनेगा? यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे आएगा हाफ। लुक हियर, cos x पहली बारी हाफ बनेगा आपका किस पे? π/3 पे। π/3 आप अप्रोक्सीमेटली देखो, π/3 will be equal to 3.14 and divided by 3, isn't it? So it will be little greater than 1. तो 1 से थोड़ा सा बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑन द नंबर लाइन, लुक केयरफुली नाउ, यहाँ पे आपके पास समवेयर हेयर यू विल हैव π/3. इज इट ओके? एंड यहाँ पे -1 से थोड़ा सा आपके पास पीछे आएगा -π/3. तो हमें तो 1 के आगे ही रहना है बेटा, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, तो 1 से लेकर हम जाएंगे कहां तक? π/3 तक, बिकॉज दिस इज π/3. तो लेट अस राइट ओवर हियर. सो वी हैव x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेकर बेटा π/3. ठीक है, और क्योंकि इक्वल टू हाफ भी है तो π/3 पे हम लेंगे क्लोज्ड इंटरवल. फिर यहां पे देखो इधर कब π/3 बनेगा? इट विल बी 2π - π/3. यू नो दैट cos of 2π - थीटा
is same as beta cos theta. We know this. So if you take cos of 2 pi minus pi by 3, it will be equal to how much? Cos pi by 3. ये कितना आ जाएगा देखो, cos pi by 3, which is equal to 1 by 2. तो cos pi by 3 होता है 1 by 2. तो ये एंगल कितना बना? 2 pi minus pi by 3. This angle is 5 pi by 3. Is it okay? अब 5 pi by 3 आप ऑब्जर्व करो, 6 के मुकाबले में कहां पे आएगा बेटा? एज कंपेयर टू 6, विल इट बी बिफोर 6 और आफ्टर 6? इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू पाई, दैट मीन्स 3.14 एंड डिवाइडेड बाय वी हैव 3. अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो आपके पास कितना आ गया? ऑब्जर्व करो, 15 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 3, यू विल हैव 5 पॉइंट समथिंग. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 5 के बाद आएगा. तो लेट मी टेक ओवर हेयर, समवेयर आफ्टर 5 यू विल हैव दिस 5 पाई बाय 3. इज इट ओके? ये आ जाएगा. तो अब आपको कहां तक जाना है? ऑब्जर्व करो, दिस विल बी यूनियन. वी स्टार्ट फ्रॉम 5 पाई बाय 3. ऑल राइट. और कहां तक जाना है? देखो 2 पाई बाद में आएगा, तो वी हैव टू गो अप टिल 6, क्योंकि cos x हाफ से बड़ा होना चाहिए बेटा. तो अप टिल 6 वी आर गोइंग टू टेक. तो cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है, देखो -1 से 6 तक, व्हाट आर वी सेइंग? cos x अगर हाफ या हाफ से बड़ा है और x इस इंटरवल को बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये वो इंटरवल है जिसमें ये बात ट्रू हो जाएगी. ऑलराइट, दोनों बातें, ये इंटरवल और cos x हाफ या हाफ से बड़ा. अब आप देखो आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया है. नाउ लेट अस टेक डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया था? You were given this function, under root of 6 plus, look here, 6 plus 35x minus 6x square. अब ये रूट के अंदर है फंक्शन, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता. और एक चीज और नोट करो, ये स्क्वायर रूट बेटा डिनोमिनेटर में है, तो वी कैनॉट हैव 0 इन द डिनोमिनेटर. दैट मीन्स दिस 6 plus 35x minus 6x square in the denominator should be strictly greater than 0. All right, तो लेते हैं कंडीशन. तो let me take this condition, 6 plus 35x, तो we have 6 plus, just a moment, yes, तो 6 plus 35x and minus 6x square should be strictly greater than 0. तो डिनोमिनेटर हमारा तब ट्रू होगा. अब इसमें आप नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय -1. इज ऑल राइट. तो जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव कर लेते हैं. तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. सो वी हैव 6x square minus 35x minus 6 will be less than 0. Let us split the middle term. We have 6x square minus 36x plus x minus 6 will be less than 0. अब देखो पहली 2 टर्म्स में हमारे पास 6x कॉमन है, then we have x minus 6, then plus 1 common, x minus 6 is less than 0. What are the two factors now? दो फैक्टर्स हैं, x minus 6 into 6x plus 1 is less than 0. आप देखो रूट्स क्या आ गए, एक आ गया हमारे पास 6 और दूसरा है -1/6. ऑलराइट, तो आप नोटिस करो यहाँ पे, जैसे अगर हम नंबर लाइन लेते बेटा यहाँ पे, तो पहला छोटा रूट आएगा -1/6 और बड़ा आएगा 6. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. एक तो देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो आपके पास आएगा ब्लैंक सर्कल. इज इट ऑल राइट. और प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो माइनस वाला रीजन लोगे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर तब हमारे पास सेटिस्फाइड होगा बेटा, डोमेन जो है, अगर हमारे पास x की वैल्यू है -1/6 से लेकर 6 तक, तो x यहाँ पे लाई करना चाहिए. अब देखो हम लेते हैं दोनों का कॉमन सोल्यूशन. लेट अस कॉल दिस एज 1. ये जो हमने न्यूमरेटर में कंडीशन निकाली थी बेटा, ये थी, तो लेट अस कॉल दिस एज 1 और इसको हम यहां पे लेते हैं 2. तो दिस इज 2. नाउ वी टेक कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 and 2. सो लेट मी टेक दैट. तो लेट्स टेक नाउ कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 and 2.
तो 1 क्या थी, इसको एक बार ही लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे 1 था, ये देखो -1 से लेकर π/3 और यूनियन 5 π/3 से लेकर कहां तक, 6 तक। तो लेट मी राइट, वी हैव 1 वॉज -1 से लेकर बेटा कितना, π/3 एंड वी हैड यूनियन 5 π/3 से लेकर कितना, 2π। ऑलराइट, और ये 2 है। अब देखो इसका कॉमन सोल्यूशन। नाउ लेट अस टेक द नंबर लाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट -1, π/3, 5 π/3 एंड 2π। अब इनको प्लॉट करते हैं। बीच में देखो -1/6 यहां पे आएगा कहीं आपका, ऑलराइट, एंड देन वी हैव 6 will be after, before 2π, a little before 2π you will have 6। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि लाई कर रहा है, ये देखो -1 से लेकर π/3 एंड देन 5 π/3 से लेकर कहां तक, 2π। और सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि x लाई करना चाहिए -1/6 से लेकर 6 ओपन इंटरवल। अब देखो कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन आपका ये हो गया कि -1/6 से लेकर जा सकते हो कहां तक बेटा, π/3 तक, है ना। ये π/3 हम यहां पे लिख देते हैं, तो दिस इज π/3, ये पॉइंट है हमारा π/3। तो ये देखो, फिर आगे कहां से कहां तक ले सकते हो, यू कैन टेक फ्रॉम 5 π/3 टिल 6। सो नाउ वी आर रेडी टू राइट द फाइनल आंसर। तो डोमेन क्या हो गई बेटा, x बिलोंग कर रहा है, ऑब्जर्व करो यहां पे ब्लैंक सर्कल है, तो -1/6 से लेकर π/3 पे आपका क्लोज्ड इंटरवल आएगा, यूनियन फिर क्लोज्ड इंटरवल 5 π/3, ठीक है। ये वाला पार्ट बेटा लेना है टिल ओपन इंटरवल 6। So this is going to be the domain of the function. Is it all right? So we have to take the help of graphs, जैसे cos x >= हमने निकाला, और दूसरे वाला पार्ट तो आप बिना ग्राफ के क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से कर सकते हो बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। ऑलराइट, तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ट्रू है बेटा, -1/6 से π/3 और 5 π/3 से लेकर 6। तो लेट अस चेक द करेक्ट ऑप्शन बेटा। तो नाउ यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो देखो हमारे पास ए ऑप्शन है, क्लोज्ड इंटरवल दिया है, देखो -1/6 पे, π/3, 5 π/3, 6 पे भी क्लोज दिया है, जबकि हमारा -1/6 और 6 पे क्या है बेटा, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल -1/6 से π/3 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 5 π/3 से लेकर 6। तो दैट मीन्स हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे वो क्या हो गई, बी। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। ये देखो यही आया था। सो यू कैन चेक कि -1/6 और 6 पे हमने लिया था ओपन इंटरवल। सो लुक हियर, -1/6 यहाँ पे ऑब्जर्व करो, -1/6 और 6 पे ओपन इंटरवल था, और π/3 और 5 π/3 पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल्स। गॉट इट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ग्राफिकली आपने करना होता है ध्यान से, और फिर गिवन इंटरवल जो आपको दिया था उसमें हमने डोमेन निकाली है। आप देखो फोर्थ क्वेश्चन, look at question number 4 on your screen. This question as you can see is from JEE Mains 2019. आपको बतानी है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, जब भी आपके पास सम होता है, प्रोडक्ट होता है, क्वोशिएंट होता है, डिफरेंस होता है, तो हम उनकी डोमेन निकाल के, अगर वो कंबाइन नहीं हो सकते हैं बेटा फंक्शंस, तो अलग अलग डोमेन निकाल के वी हैव टू टेक द कॉमन सोल्यूशन। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट हियर। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, फंक्शन हमें ये गिवन है, वी आर गिवन fx टू बी इक्वल टू 1/4 minus x square plus we have log to the base 10 x cube minus x. All right, this is the function. अब हम एक एक करके लेते हैं। पहले ये वाला फंक्शन लो, 1/4 minus x square। अब देखो इस फंक्शन में आपके पास एक तरह से ये रैशनल फंक्शन है। न्यूमिनेटर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
तो कहीं अंडर रूट नहीं है बेटा, तो नेगेटिव हो सकता है डिनोमिनेटर, द ओनली थिंग इज इट शुड बी नॉन जीरो। तो देखो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स व्हाट, कि एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर 4 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -2 और 2। तो x कैन नॉट टेक दीज वैल्यूज, उसके अलावा x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बिकॉज योर डिनोमिनेटर हेयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। अब हम दूसरा लेते हैं, लेट अस टेक लॉग वाला फंक्शन। अब बेस तो 10 है, दैट इज ओके, तो बेस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बेस या तो 0 से 1 के बीच में होती है और इट इज ग्रेटर देन 1, एज आई टोल्ड यू। अब देखो डोमेन में, लॉग की डोमेन क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो दैट इट्स लॉग इज डिफाइंड। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अब इसमें देखो x कॉमन ले लो, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको भी फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, सो वी हैव 3 फैक्टर्स, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या क्या रूट्स आ रहे हैं बेटा, वी हैव 0, -1 and then we have 1. Is it okay? तो third root is 1. तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं in the increasing order. So let us look at the roots in the increasing order. We have -1, 0 and then 1. Because हमारे पास सभी फैक्टर्स में ऑब्जर्व करो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, so we write प्लस माइनस प्लस माइनस, वेवी कर्व मेथड। और आपके पास इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे ब्लैंक सर्कल्स आएंगे बेटा, -1, 0 और 1 पे, नहीं तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 है तो आप प्लस वाला रीजन लोगे, तो प्लस वाला रीजन या तो ये है और या फिर इसके आगे है। इसका मतलब हमारे पास x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 0 और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। तो ये कंडीशन आ गई, ये इंटरवल आ गया बेटा जो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम लेंगे 1 और 2 का कॉमन सोल्यूशन। सो नाउ लेट अस टेक कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2। सो लेट मी टेक नाउ कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2। अब देखो आपने क्या करना है, 2 को पहले जैसे नंबर लाइन पे लेते हैं, हमने यहीं पे लिया जैसे वी हैव -1, 0 एंड देन 1। तो कौन से वाला रीजन लेना है, -1 से लेकर 0 और हमने 1 से आगे लेना था इंफिनिटी। बट हमारी कंडीशन फर्स्ट क्या थी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और -2। तो लेट अस चेक कहीं ये इंक्लूडेड तो नहीं है, क्या ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं 2 और -2। अब देखो -2 तो यहाँ पे आएगा, वो तो इंक्लूडेड नहीं है, पर 2 यहाँ पे आएगा। 2 को नहीं लेना तो 2 पे लेना पड़ेगा आपको ब्लैंक सर्कल। तो फाइनल आंसर हम ये दे सकते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 0 यूनियन। अब देखो ये वाले 2 को आपने एक्सक्लूड करना है, तो दैट मीन्स वी कैन से 1 से लेकर 2 तक जाएंगे ओपन इंटरवल, exclude 2 and then from 2 we can go up to infinity. So this is the interval in which x should lie. तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगी domain of the given function. What it is? -1 to 0 open interval, then 1 to 2 and then 2 to infinity. तो चेक करते हैं which option is correct बेटा। तो ये देखो यहाँ पे, look at the complete question on your screen now. All right, so you can see C option will be correct. A option wrong है, 3 to infinity तो नहीं था हमारा, फिर -2 भी, -2 से -1 ये रीजन भी नहीं ले रहे थे बेटा, तो ये वाला ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, -1 to 0, 1 to 2 and then 2 to infinity. So that means answer to this question will be C option. Got it? So C option हमारी यहाँ पे करेक्ट है। Let's move on to the next question now. ठीक है, अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। लुक हियर, क्वेश्चन इज टू फाइंड द डोमेन एंड दिस इज फ्रॉम EEE 2004। अब देखो इसमें इनवर्स फंक्शन भी आपका इन्वॉल्व है, एज यू कैन सी। तो लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। वी आर गिवन फंक्शन एज साइन इनवर्स, वी हैव x -3 एंड देन डिवाइडेड बाय under root of 9 minus x square.
तो इसमें लेते हैं इस फंक्शन की डोमेन। सो अगेन लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपके पास फंक्शन है साइन इनवर्स x माइनस 3। अब देखो आपके पास अगर फंक्शन होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो देखो इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन इज कि x लाई करता है फ्रॉम -1 to 1। दिस इज द डोमेन। ऑलराइट, तो हम डोमेन की ही बात कर रहे हैं। तो इन द न्यूमरेटर वी हैव साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3। तो इसका मतलब जो x माइनस 3 है इट शुड लाई फ्रॉम -1 to 1। ऑलराइट, सो दैट मीन्स वी हैव -1 से लेकर x माइनस 3 शुड लाई अप टिल 1। अब x निकालते हैं, x कहाँ लाई कर रहा है? तो -3 रिमूव करने के लिए इनइक्वालिटी में लेट अस ऐड 3। You know that if in any inequality you add or subtract a quantity, sign of inequality remains the same. तो 3 ऐड करने पे we are getting 2 is less than equal to x is less than or equal to 4। तो ये हो गया हमारा 1, मतलब न्यूमरेटर तब डिफाइंड है। Now let us talk about the denominator। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी आपको पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकती, और क्योंकि ये रूट आपका डिनोमिनेटर में है तो यस जीरो भी नहीं हो सकती। तो कंडीशन ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले इसको कर लो मल्टीप्लाई बाय -1। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। We get x square minus 9 to be strictly less than 0. Let's factorize it. So we have x plus 3 into x minus 3 will be less than 0. You can see the roots are -3 and 3. These are the two roots. So let's plot them on the number line. Alright, look here. Smaller root is -3 and bigger root is 3. अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, गॉट इट, ये हो गया। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप -3 और 3 पे लोगे ब्लैंक सर्कल्स, और फिर लेस देन 0 है तो वी आर गोइंग टू टेक माइनस वाला रीजन। दैट मीन्स x इज लाइंग फ्रॉम -3 to 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का सोल्यूशन। अब दोनों का लेना है कॉमन सोल्यूशन। इज इट ओके? सो लेट अस डू दैट नाउ। Now we are going to take common solution of 1 and 2। तो ये देखो लेते हैं common solution of 1 and 2। अब किन किन नंबर्स की देखो बात हो रही है? -3 3, और हम 1 में बात कर रहे थे 2 और 4 की। तो let us take these numbers now। -3 3 and then we are talking about 2 and 4। अब देखो पहली इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाइड थी? पहली कंडीशन जब आपके पास x2 या 4 के बीच में है। तो डार्क सर्कल्स लेने हैं, तो वी हैव फ्रॉम 2 to 4। ये हो गया। अब सेकेंड कब सेटिस्फाइड है? नोट करो, -3 to 3 ओपन इंटरवल। ये हो गया। नाउ व्हाट इज द कॉमन सोल्यूशन? You can see the common solution is closed interval 2 से लेकर open interval 3। तो that means x is belonging to closed interval 2 to open interval 3। Is it okay? So this is going to be the domain of the function बेटा। तो ये डोमेन आ गई। ऑलराइट, तो न्यूमरेटर हमने अलग देखा फंक्शन, डिनोमिनेटर अलग से। जो जो कंडीशंस उन पे आई थी उनका लिया हमने कॉमन सोल्यूशन। सो लेट अस चेक द ऑप्शन closed interval 2 to open interval 3। So look here now। So you can see closed interval 2 to open interval 3, as we can see that is B option। So in this question also the correct option will be B। Got it? तो ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो तो इट इज इंपॉर्टेंट बेटा कि हम डोमेन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जब आप फंक्शंस में मूव ऑन करते हो तो आप नोटिस करोगे फाइंडिंग द डोमेन कुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट मे नॉट बी अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, बट in many questions when we move further in functions or we talk about differentiability या application of derivatives पे move on करते हैं, तो बहुत बार हमें उस function के
डोमेन की ज़रूरत होती है, ताकि हम कोई x की ऐसी वैल्यू ना ले लें जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू फाइंड द डोमेन, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं, एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, याद है ना, यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑलराइट। तो देखो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, ये 5th था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा ये गिवन है, दिस इज द फंक्शन। अब इसमें जेंट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो आपकी इसकी डोमेन, आपको इसकी डोमेन बतानी है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ। तो लेट मी राइट द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। वी हैव f of x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी हैव जेंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस वी हैव जेंट ऑफ x और माइनस कितना 6, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखो इसको कैसे करना है। इसमें आप नोटिस करो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, तो रूट के अंदर जो हमारे पास फंक्शन दिया है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे, और 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, ऑलराइट। सो द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव इज दैट जेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ x एंड माइनस 6 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम से जेंट ऑफ x बी इक्वल टू t। इज इट ओके? तो इनइक्वालिटी देखो क्या बन गई, वी हैव इनइक्वालिटी t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म टू फैक्टराइज इट। सो वी हैव t स्क्वायर, इसको आगे करते हैं, तो आप देखो यहां पे दिस इज t स्क्वायर minus 3t plus 2 times t minus 6 is greater than 0. From the first two terms we have t common, t minus 3, then we have plus 2, t minus 3 is greater than 0. So what are the factors? We have two factors as t plus 2, t minus 3, alright. और इनको 0 पुट करने पे क्या रूट्स आ रहे हैं, one root is minus 2 and other root is 3. आप देखो वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं, तो लेट अस प्लॉट द रूट्स माइनस 2 एंड 3। अब देखो ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इन पे ब्लैंक सर्कल्स आएंगे। देन वी हैव प्लस माइनस प्लस, बिकॉज वी हैव ग्रेटर देन 0 सो वी विल टेक प्लस वाला रीजन। तो देखो या तो हमारा t माइनस 2 से छोटा होगा और t विल बी ग्रेटर देन 3। सो वी आर गेटिंग आइदर t इज लेस देन माइनस 2 और t शुड बी ग्रेटर देन 3। तो यह आ गया। अब देखो व्हाट इज t, t हमारा क्या था, लुक हियर, इट वाज जेंट ऑफ x। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो जेंट ऑफ x की कर रहे हैं, तो कंडीशन ये आ गई आइदर जेंट ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस 2 और जेंट ऑफ x शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। अब देखो अगर जेंट ऑफ x माइनस 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है, इस बात को हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जेंट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। इज इट ओके? क्योंकि माइनस 2 से पिछला इंटीजर माइनस 3 होता है, और यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इट विल टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, ऑलराइट। इसी तरह से जेंट ऑफ x अगर 3 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब देखो जरा यहाँ पे नंबर लाइन, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सपोज आई हैव माइनस 3, तो इधर आपके पास आएगा माइनस 4 माइनस 2 एंड सो ऑन, और इसको आगे ले लो, मान लो 4 है तो समवेयर हेयर यू विल हैव 3 एंड देन 5। पहले इस पार्ट को लेते हैं कि जेंट ऑफ x माइनस 3 या उससे छोटा है। अब देखो किन नंबर्स का जेंट माइनस 3 बनेगा, किन का बनेगा। अब जैसे अगर आप इसके बीच में लोगे माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में, उनके बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हो तो जेंट माइनस 3 आएगा ना, लेकिन माइनस 2 का जेंट माइनस 2 होता है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट कि जेंट ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3 इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस 2। जैसे आप देखो माइनस 2 पॉइंट अगर आप 1 लेते हो तो इट्स जेंट विल बी इक्वल टू माइनस 3। तो जेंट माइनस 3 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, तो x शुड बी लेस देन माइनस 2, ठीक है। और या फिर जेंट 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो 4 या 4 से बड़े नंबर्स अगर आप लोगे, जैसे 4 का जेंट 4 होता है, 4.1 का भी जेंट 4 एंड सो ऑन,
लेकिन अगर 3 और 4 के बीच में कोई नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 3.9, तो उसका जेंट बेटा 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। हमें जेंट चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इज इट ओके? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन -2, क्योंकि -2 का जेंट अगर आप लोगे बेटा तो वो इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमें जेंट लेस देन इक्वल टू -3 चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 जेंट चाहिए, तो x को 4 ले सकते हैं, यहाँ -2 नहीं ले सकते। तो फाइनल हमारा आंसर ये आ गया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 बेटा, ठीक है ना, क्योंकि x हम बोल रहे हैं या तो देखो -2 या उससे छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा स्ट्रिक्टली, या फिर x 4 या 4 से बड़ा चाहिए हमें। तो यूनियन वी हैव क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। तो और आपको पता है बाय डिफॉल्ट बेटा, बाय कन्वेंशन, -∞ और इन्फिनिटी पे हम लेते हैं ओपन इंटरवल। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, तो -∞ टू -2 ओपन इंटरवल यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो दैट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ए। इज इट ओके बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो इसमें लॉग फंक्शन इन्वॉल्व है, पर इनसाइड द लॉग वी हैव मॉडुलस एंड वी हैव जेंट ऑल्सो, ऑलराइट। तो वेयर दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन, और बाहर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमें सबकी नॉलेज चाहिए तीनों फंक्शंस की टू फाइंड इट्स डोमेन, ऑलराइट। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखो अगेन वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फंक्शन। सो वी आर गिवन fx टू बी इक्वल टू log ऑफ, देखो बेस है आपके पास जेंट ऑफ x प्लस हाफ, इज इट ओके? ये और log किसका लेना है? मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस फंक्शन की हमने निकालनी है डोमेन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मान लो बेस की। लेट अस टॉक अबाउट द बेस। यू नो दैट कभी भी आपके पास फंक्शन हो अगर y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, तो बेस या तो 0 से 1 के बीच में होगी और बेस इज ग्रेटर देन 1। इज इट ऑलराइट? यहां पे हमारी बेस ये है जेंट ऑफ x प्लस हाफ, दैट मीन्स वी गेट या तो जेंट ऑफ x प्लस हाफ होना चाहिए बिटवीन 0 टू 1, या फिर बेटा जेंट ऑफ x प्लस हाफ शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इज इट ओके? अब देखो जब हम जेंट लेते हैं किसी भी नंबर का तो वो क्या बनता है? इंटीजर बनता है। इज इट ऑलराइट? तो नोटिस करो स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 टू 1 कोई भी इंटीजर नहीं होता, तो दैट मीन्स दिस केस विल बी रिजेक्टेड। हमारी बेस 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकती बिकॉज इट इज एन इंटीजर। अब अगर बेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो यहां से हमें यह मिल रहा है कि जेंट ऑफ x प्लस हाफ should be greater than or equal to 2. Is it okay? जेंट स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है, मतलब जेंट की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। नाउ लुक हियर, किन किन नंबर्स का जेंट 2 या 2 से बड़ा होता है? तो लुक एट द नंबर लाइन। वी हैव सपोज दिस एज 2, फिर 1 और ये 3 बेटा, ऑलराइट। अब देखो हमें जेंट 2 से या 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 का जेंट 2 होगा, 2.1, 2.3। इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 2 to 3 जेंट विल बी 2, और 3 या 3 से आगे भी हम जा सकते हैं। तो दैट मीन्स x कैन, ये जो x प्लस हाफ है आपका, ये 2 या 2 से बड़ा लोगे। 2 से पहले नहीं जा सकते, जैसे इफ यू टेक 1.9 बेटा उसका जेंट 1 आता है, तो हमें जेंट 2 या 2 से बड़ा चाहिए। तो इसका मतलब जेंट के अंदर जो x प्लस हाफ है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो x निकालना है, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। लेट अस कॉल इट एज 1। तो ये पहली कंडीशन आई है जो कि हमने किसके ऊपर निकाली है बेटा? बेस के ऊपर। 0 से 1 के बीच में बेस हो नहीं सकती,
और अगर बेस 1 से बड़ी है तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। अब आ जाओ इस पे कि log कब डिफाइंड होता है बेटा। तो log हम तब डिफाइन करते हैं जब उसमें जो डोमेन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब इट इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। तो लेट मी टेक नाउ, तो आपके पास log किसका डिफाइन कर रहे हैं, ये देखो mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ओनली देन इट्स log विल बी डिफाइंड। अब देखो मॉड्यूलस है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव तो नहीं होगी, इज इट ओके। तो हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि मॉड के अंदर वाली जो है वैल्यू दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया बेटा तो उसका मॉड 0 आ जाएगा और log 0 इज नॉट डिफाइंड। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू होगी तो मॉड लेने के बाद दैट वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव, ऑलराइट। अब देखो ये कब ट्रू होगा, इसको फैक्टराइज कर लो। तो यू विल हैव टू फैक्टर्स x minus 2, x minus 3 नॉन जीरो। दैट मीन्स x कैनॉट टेक वैल्यूज 2 और 3, ऑलराइट। उसके अलावा x कोई भी वैल्यूज ले सकता है, तो वी कॉल इट एज 2। तो दो कंडीशंस हमारे पास आ गई 1 and 2। सो नाउ लेट अस टेक कॉमन सॉल्यूशन। तो नाउ वी आर रेडी टू टेक द कॉमन सॉल्यूशन। अब देखो कॉमन सॉल्यूशन क्या लेंगे, नंबर लाइन पे लेते हैं हम। किन किन नंबर्स की बात हो रही है, देखो 2, 3 and 3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव 3/2, देन वी हैव 2 and then we have 3। फर्स्ट कंडीशन इज दैट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, तो ये पहली कंडीशन है बेटा। दूसरी कंडीशन है x 2 या 3 नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करो अगर हमने 2 या 3 लिया है तो वो हटाना है, तो 2 नहीं लेना, वहां पे ब्लैंक सर्कल, 3 कैनॉट बी टेकन, वहां पे ब्लैंक सर्कल। तो फाइनल सॉल्यूशन हाउ कैन वी राइट, लुक हियर। तो x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 3/2 से लेकर हम जाएंगे 2 तक, फिर 2 को निग्लेक्ट करना है तो यूनियन ओपन इंटरवल 2 से लेकर 3, देन निग्लेक्ट 3 and then we have union 3 to infinity. Is it all right? So this is the required domain. तो अगर x इस इंटरवल में है बेटा तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है, all right? So closed इंटरवल 3/2 से 2 तक, फिर 2 से 3 और फिर 3 से इंफिनिटी। चेक करते हैं which option is correct। तो यहाँ पे देखो, तो यू कैन सी ए ऑप्शन, ऑब्जर्व करो, ये देखो क्लोज्ड इंटरवल 3/2 to 2, 2 to 3 and then 3 to infinity. That means in this case correct option will be A. Got it? So this was question number 7. अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, ऑलराइट। इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन कि फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ NCR। 24 minus x c 3x minus 1, 40 minus 6x c 8x minus 10 and we have to find the domain। तो देखते हैं इसकी डोमेन कैसे निकलेगी। तो लेट मी राइट द फंक्शन। वी आर गिवन द फंक्शन एज 24 minus x c 3x minus 1 and plus we have 40 minus 6x c 8x minus 10। अब देखो इसकी डोमेन निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर NCR की बेटा बात करते हो तो हमारे पास कंडीशंस ये होती हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बोथ आर व्हाट, होल नंबर्स। ठीक है ना, ये होल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज NCR मीन्स नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n। तो r और n थिंग्स होती हैं तो वो होल नंबर्स होंगे। और दूसरा r विल लाई फ्रॉम 0 to n, मतलब r इज लेस देन और इक्वल टू n, ये होता है हमारे पास, ऑलराइट। तो लेते हैं कंडीशंस। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, लेट अस टेक द फर्स्ट वन, इज इट ऑलराइट। तो फर्स्ट के ऊपर देखो क्या कंडीशन आ गई। एक तो ये होगा 24 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और फिर जैसे एक कंडीशन ये ले लो बेटा और एक ये इकट्ठी इसी में हो जाएगी कि r लाइज फ्रॉम 0 to n। तो दूसरी कंडीशन हम ये लेंगे कि 3x minus 1 will lie from 0 to 24 minus x। अब पहली कंडीशन का सोल्यूशन देखो क्या हो गया कि x is less than or equal to 24, एक कंडीशन ये है। Now take this part of the inequality। So we are getting 1 is less than or equal to 3x, that means we get x is greater than or equal to 1 upon
3. Second condition is this. फिर इतना पार्ट इनइक्वलिटी का let us solve. What are we getting? Look here, 3x minus x is 4x is less than equal to 25. Positive quantity से divide करो, sign of inequality will remain same. So that means x is less than or equal to 25 by 4. So we have this. तो पहले एनसीआर के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ गई. अब सेकंड लेते हैं. देखो सेकंड में हमारे पास कितना है, ऑब्जर्व करो, n है 40 माइनस 6x. तो नाउ दूसरे के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, देखो एक तो 40 माइनस 6x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन ये आएगी आपके पास कि ये r है, इट शुड लाई बिटवीन 0 to n. तो 8x माइनस 10 लाई करना चाहिए 0 से लेकर कहां तक, 40 माइनस 6x तक. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. सो पहली देखो, वी हैव 40 इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x, राइट. तो दैट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 40 by 6 विच इज 20 by 3. तो वन कंडीशन ऑन x वी आर गेटिंग एज दिस. सेकेंड कंडीशन यहां से निकालते हैं इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके. What are we getting? That 10 is less than equal to 8x, so that means x is greater than or equal to 5 by 4. So we have this. अब ये पार्ट ले लो इनइक्वलिटी का. So we have 8x minus 6x, 8x plus 6 हो जाएगा, that means 14x is less than or equal to 50. 2 से डिवाइड करो, 14 को उधर ले जाओ या, तो we have x is less than equal to 25 upon 7. तो ये देखो हमारे पास, यू कैन सी वी हैव ये वाली हमारी 6 कंडीशंस. ऑलराइट. तो x इज लेस देन इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by 3, लेस देन इक्वल टू 25 by 4. ऑलराइट. एंड देन वी हैव दिस. तो सबका लेते हैं अब हम कॉमन सोल्यूशन. तो लेट अस टेक कॉमन सोल्यूशन. आप देखो नंबर लाइन पे आपके पास ऑर्डर वाइज आपने प्लॉट करने हैं ये सारे. किन किन नंबर्स की देखो बात हो रही है, ध्यान से देखना. पहले में हम बात कर रहे थे 24 1 by 3 25 by 4. 24 1 by 3 25 by 4. इज इट ओके? 1 by 3 इज अप्रोक्सीमेटली 0.3. ठीक है. 25 by 4 लोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.25 के करीब. तो पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं. यहां पे देखो. सो वी हैव हाउ मच, 1 by 3 पहले आएगा बेटा, फिर आपके पास आएगा कितना, ये 25 by 4 एंड देन वी विल हैव 24. फिर हम इनकी बात कर रहे हैं 20 by 3. 20 by 3 लोगे कितना आएगा बेटा, 6.6. तो इट विल बी जस्ट आफ्टर 25 by 4. सो आफ्टर 25 by 4 वी विल हैव 20 by 3. Got it? Then 5 by 4 will be 1 point something. तो यहाँ पे करीब ले लो 5 by 4. और फिर 25 by 7. So 7 3s are 21 होता है, 3 point something. तो you will have it somewhere here 25 by 7. ठीक है. तो अब हम इनको लेते हैं. So let us see. In the first inequalities we had these conditions. x is less than equal to 24, x is greater than or equal to 1 by 3, x is less than equal to 25 by 4. तो इनको लेते हैं. देखो पहली कंडीशन थी x is less than or equal to 24. ऑल राइट. तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा. दूसरी कंडीशन क्या थी, x is greater than or equal to 1 by 3. So we have this. Then we had x is less than equal to 25 by 4. That means this. अब हम ये वाली कंडीशंस लेते हैं जो सेकेंड एनसीआर में बेटा हमने ली थी. तो लेट अस टेक दीज नाउ. ऑलराइट. तो पहली है x इज लेस देन इक्वल टू 20 by 3. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 20 by 3. देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 by 4. सो वी हैव x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 by 4. एंड देन x इज लेस देन इक्वल टू 25 by 7. सो इट विल बी दिस. अब हमें सबका चाहिए कॉमन सोल्यूशन. आप देखो कॉमन सोल्यूशन कहां पे आ रहा है, ऑब्जर्व करो. यहां पे जैसे यहां पे है 5 by 4 से लेकर
25/7। यही वो रीजन है जिसके ऊपर ऑल 6 लाइंस आर कमिंग। दैट मीन्स इसी रीजन में बेटा हमारी सारी इनइक्वलिटीज सेटिस्फाइड है। सो व्हाट डू वी गेट? वी आर गेटिंग x is lying from 5/4 to 25/7। अब देखो हमने कहा है कि x हमारा क्या होता है? होल नंबर। इज इट ऑल राइट? या इसमें तो नेचुरल नंबर भी कह सकते हो कि 5/4 से 25/7 के बीच में हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो 5/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो वी कैन टेक x एज 2, 3। अब 3 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 25/7 इज 3 पॉइंट समथिंग। सो दैट मीन्स x विल टेक दीज टू वैल्यूज। तो इसका मतलब जो डोमेन है बेटा वो हमारी हो गई सेट कंटेनिंग दीज टू एलिमेंट्स 2 and 3. All right, so domain is set containing elements 2 and 3. This is going to be the solution. All right, तो check करते हैं which option is correct. So look here, this is the complete question on your screen. तो domain हमें बतानी थी, तो A option आ जाएगी set containing elements 2 and 3. So we can say that here A option is correct. Got it? Let's move on to the next question now. अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। वी आर गिवन दैट fx इज डिफाइंड ऑन 0 to 1। मतलब fx तब डिफाइंड है जब x आपका 0 से 1 में लाई करेगा, तो आपने ये जो न्यू फंक्शन है इसकी डोमेन बतानी है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी हैव फंक्शन fx इक्वल टू नए फंक्शन को ना एक काम करते हैं gx से डिनोट कर लेते हैं बेटा। तो लेट अस assume the new function to be gx. It is equal to f of ex and plus we have f of ln mod x. तो ये हो गया हमारे पास, और आपको ये गिवन है कि f की डोमेन है 0 to 1। तो मतलब डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx is 0 to 1। अब सबसे पहले आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो f ऑफ ex पे। ये देखो कब डिफाइंड होगा? जब ex आपका लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि fx तब डिफाइंड है जब आपका x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। ठीक है ना, x इस इंटरवल में है। तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव e रेज पावर x। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये आई है कि e रेज पावर x शुड लाई फ्रॉम 0 to 1। अब देखो ये कब लाई करता है, उसके लिए आप क्या देख सकते हो? यू कैन लुक एट द ग्राफ। लुक एट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये देखो यहां पे दिस इज 0, दिस इज 1। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ देखेंगे बेटा y इज इक्वल टू ई रेज पावर x का, तो वो ग्राफ आपका ऐसे आता है, इट गोज लाइक दिस, है ना, ऐसे धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 है, तो इसका मतलब हम इस पार्ट ऑफ ग्राफ की बेटा बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। तभी आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से 1 के बीच में है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो दैट मीन्स इट इज ट्रू व्हेन x इज लेस देन 0। मतलब माइनस इन्फिनिटी से x लाई करना चाहिए कहां तक? 0 तक। ये हो गया, तो ये इसको हम कह देते हैं 1 का सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे ये वाला फंक्शन f ऑफ ln mod x। ln मीन्स log टू द बेस e, नेचुरल लॉग। अगेन fx की डोमेन ये है, मतलब ये fx तब डिफाइंड है जब वेरिएबल 0 से 1 है। यहां वेरिएबल है ln mod x। सो लेट अस टेक दिस कंडीशन दैट ln mod x। तो अब लेते हैं हम दूसरी कंडीशन कि ln mod x दिस शुड लाई फ्रॉम 0 to 1। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। अब देखो जैसे मैंने कहा ln का मतलब होता है log टू द बेस e। सो दैट मीन्स log टू द बेस e mod x शुड लाई बिटवीन 0 to 1। अब क्योंकि बेस e जो है 1 से बड़ी है, तो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। दैट मीन्स e रेज पावर 0 शुड बी लेस देन x शुड बी लेस देन e रेज पावर 1। e रेज पावर 0 आपका 1 होता है, तो 1 इज लेस देन mod x इज लेस देन e। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसमें देखो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती है जिसमें a और b बेटा पॉजिटिव हैं और ऑब्वियसली a इज लेस देन b, तो इस इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन देखो क्या होता है।
वी हैव ए बी और नेगेटिव में माइनस बी आपका छोटा होगा माइनस ए बड़ा, तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी. So same thing can be applied over here. So look here, on the number line we can take minus e minus 1 then 1 and then e. तो ये इनइक्वालिटी तब सेटिस्फाइड है जब x माइनस e से माइनस 1 है और 1 से लेकर e. So that means we are getting x is belonging to this interval minus e to minus 1 and union 1 to e. तो ये आपका देखो सॉल्यूशन आ गया किसका, सेकेंड का बेटा. अब हमें लेना है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि gx फंक्शन में देखो सम ऑफ टू फंक्शंस था. ऑब्जर्व करो, ये देखो gx फंक्शन की आपको डोमेन चाहिए, ठीक है, ये वाले फंक्शन की. तो इसमें ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, पहले की डोमेन दूसरे की डोमेन और उनका इंटरसेक्शन. फर्स्ट की डोमेन है कि x नेगेटिव होना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट अस टेक कॉमन सॉल्यूशन नाउ. So now we are going to take the common solution. So let us take the number line. Let's take minus e, right? Minus 1, then 0, then 1 and then e. पहली कंडीशन ये थी कि x should be strictly less than 0. और दूसरी कंडीशन आपकी ये है या तो e माइनस ई से माइनस 1 या 1 से लेकर e. तो ऑब्वियसली कॉमन सॉल्यूशन आपका बेटा ये हो गया माइनस ई से लेकर माइनस 1. सो वी विल से दैट x बिलोंग्स टू माइनस ई टू माइनस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी द डोमेन, ऑलराइट, ऑफ द न्यू फंक्शन gx. तो ये हमारे पास हो गई डोमेन ऑफ gx, राइट, जो कि हमें पूछी थी. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो अब देखो माइनस ई से लेकर माइनस 1. सो लुक एट द क्वेश्चन नाउ. तो ऑब्जर्व करो, माइनस ई टू माइनस 1 इज ए ऑप्शन. सो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, ये देखो 10th क्वेश्चन हमारे पास ये है, लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन दिस फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड. सबसे बड़ा इंटरवल जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है. अब आप नोटिस करो ये फंक्शन सम ऑफ 3 फंक्शंस है, तो अलग अलग डोमेन लेके वी नो दैट वी हैव टू टेक द कॉमन सॉल्यूशन. सो वी हैव fx इक्वल टू 4 रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वी हैव cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1 and then we have log of cos x. all right, ये हो गया. अब देखो इसको करते हैं सॉल्व. तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है 4 रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन होती है, मान लो d1 कह देते हैं, दैट इज ऑल रियल नंबर्स. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर कुछ भी हो सकती है, राइट. अगला फंक्शन लो, दैट इज cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 माइनस 1. आपको पता है cos इनवर्स x की डोमेन इज -1 to 1. तो इसमें कंडीशन आपके पास ये है कि x बाय 2 माइनस 1 लाई करना चाहिए फ्रॉम -1 to 1. अब देखो x निकालते हैं. सबसे पहले वी कैन ऐड 1 टू गेट रिड ऑफ 1 हेयर. सो वी हैव 0 इज लेस देन इक्वल टू x बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब इस 2 को हटाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 2. पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. तो x इज लाइंग फ्रॉम 0 to 4. इज इट ओके. तो इस फंक्शन की हमारी डोमेन d2 हो गई क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4. गॉट इट. तीसरा देखो है log ऑफ cos x. सो लेट अस टेक द थर्ड वन विच इज log ऑफ cos x. अब देखो log कब डिफाइंड होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का. इज इट ओके. तो हमारे पास ये हो गया कि cos x होना चाहिए ग्रेटर देन 0. cos x शुड बी ग्रेटर देन 0. अब आपको देखो इसमें इंटरवल दिया हुआ है कि आपको जो बताना है वो लार्जेस्ट इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए, वरना cos x तो पॉजिटिव बहुत सारी जगहों पे होगा. अब आप ग्राफ देखो जरा y इक्वल टू cos x का बेटा. लुक हियर, फ्रॉम -π/2 टू π/2. ऑलराइट, तो उसी इंटरवल में हम खाली ग्राफ देखते हैं. तो वी हैव -π/2 एंड दिस इज π/2.
राइट। ग्राफ आपको पता है, यहाँ पे 0 पे वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 पे 0, पाई बाय 2 पे 0, कॉस का ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो cos x अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इज इट ओके? तो ये हमारा हो गया D3। सो D3 इज दिस ओनली, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, अब हम लेते हैं सबका कॉमन सोल्यूशन। नाउ लेट अस टेक कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल। एक तो आपको गिवन इंटरवल दिया ही था बेटा कि जो भी सोल्यूशन है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। तो लेट अस टेक, अब पहले में हम बात कर रहे थे कि दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड D2 है, देखो 0 to 4। इज इट ऑल राइट? तो वी हैव 0 एंड वी हैव 4। तो माइनस पाई बाय 2 विल बी समवेयर हियर बिफोर 0, और उसके बाद बेटा पाई बाय 2 आपका करीब यहां पे आएगा। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी, पहली जो कंडीशन थी डोमेन 4 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर। ऑलराइट, दूसरा था क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। ये देखो वी हैड क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4, तो इसको हम कर लेते हैं प्लॉट यहां पे। सो 0 से लेकर 4 तक, और फिर D3 है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो यहां से लेकर यहां तक। इज इट ओके? तो कॉमन सोल्यूशन कितना आ गया, क्योंकि फर्स्ट वाला वॉज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो फर्स्ट वाली तो कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल रियल नंबर्स, बट वी हैव टू स्टे फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओनली। सो दैट मीन्स द डोमेन विल बी इक्वल टू, अब देखो डोमेन कितनी आ जाएगी, इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2, जिसके ऊपर सारी लाइंस आ रही हैं। इजंट इट? ये देखो क्लोज्ड इंटरवल 0 से और ओपन इंटरवल हमारा पाई बाय 2। So this is going to be the domain of the given function fx. Let us check which option is correct. एक मिनट, यहाँ पे पाई बाय 2 पे बेटा हमारा जो है वो आना था ओपन इंटरवल, तो दिस इज 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे ओपन इंटरवल है, ये देखो पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं है। Alright, so let us check which option is correct. So the correct option was closed interval 0 to open interval pi by 2. That means in this case D option will be correct. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी डी आ गई। ठीक है, तो इसमें अलग अलग देखो हमें फंक्शंस दिए हुए थे, सबकी अलग अलग डोमेन निकाल के वी हैव ऑब्टेन्ड द इंटरसेक्शन। राइट, सो बेटा इन दिस लेक्चर यू हैव सीन वी हैव डन questions MCQs on finding the domain of real functions. all right, तो उसके लिए आपको functions की बेटा जो बेसिक स्टैंडर्ड हमारे real functions हैं उनकी नॉलेज, मतलब उनकी बेसिक डोमेन, उनका ग्राफ वो पता होने चाहिए, ताकि मॉडिफाई करके अगर आपको कोई भी इक्वेशन एज अ कॉम्पोजिट फंक्शन पूछा है तो हम उसकी डोमेन निकाल सकें। ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर एज वी हैव डन द डोमेन, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा MCQs ऑन रेंज ऑफ अ फंक्शन। ऑलराइट, आपको पता है जैसे अगर हम 1 ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं तो ऑन टू फंक्शन में भी हमें क्या चाहिए होती है, रेंज चाहिए होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you do not miss out on any of the important lectures which involve the discussion of MCQs. All right, thank you beta and bye bye.